Good afternoon everyone, I am Anupama Verma here going to teach you computer fundamentals, and today we are going to learn about the basics of MS Excel. Yesterday we have completed some of the topics like introduction of MS Excel, uses of MS Excel, components of MS Excel and some of the basic terms of MS Excel. Before doing the other topics, let's summarize the topics which we have learned in the yesterday's class. So, these are the contents I have already told you. So, as you all know, Excel is a Microsoft application, or we can say it is a part of Microsoft Office. Okay. So, this is a type of a software application which is basically used for the analyzing of data, organizing the data with some of the advanced features. So, whenever, for example, in the past few years you are going to make the data in a manual sheets. What you have to do is you have to take the paper, make the data in a manual sheets. But after introduction of the technology is introduced. So the MS Excel is a very important or very spreadsheet tool which is used to basically work on the data. Okay, so these are some of the versions. So how to start MS Excel we have already learned. Go to the start button, then click on the all programs, Microsoft Office you can click on the, and then Microsoft Excel will be open. After that, right click on the desktop, new and Microsoft Excel sheet. Uses of MS Excel, some of the uses are written here. We are using the MS Excel for data entry and the storage, for conducting the computations, for data analysis and interpretations, for data graphical representations, for financial management, allocation of funds, acquisition and authentication of business data, responsibilities related to administrative and management, forecasting and automating repetitive tasks. So all these are the some of the purposes you are using, or some of the uses of MS Excel. These uses can be done in the MS Excel. So I have already told them in the briefly. We have learned in the yesterday's class what are the MS Excel. So as I already told you, this is the layout of the MS Excel window. In the yesterday's class we have learned the overall components of the MS Excel. We have already learned this title bar here. What is the definition, or what is the purpose of title bar? It is basically show the name of the title, and also it contains some quick toolbars and some of the minimize, maximize and close button. Below the title bar there is also a menu bar. आप देख रहे हैं, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं. ठीक है. Why this is called menu bar? Because it contains some of the menus like file menu, home menu, insert menu, page layout, formulas, data, review, help. All these are the menus here. After the menu bar there is a standard toolbar here. Standard toolbar or toolbar ribbon is a ribbon where you will find some of the tools on which you can directly access them by single click. Okay. After that there is a name box. Name box क्या है? Name box क्या है? Name box is the box where you will find the cell name, and cell name is considered by the rows and the columns. Okay. This is the formula bar. fx आपको शो हो रहा है, ये formula bar होता है. ये इसलिए यूज होता है, जो भी डेटा के पीछे formula लगा हुआ है उसको वो यहाँ पे शो करता है. So A B C D E F G denotes the columns, 1 2 3 4 5 denotes the rows. In the yesterday's class we have studied all these things. इसी के साथ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आ जाता है, कंट्रोल बटन्स आ जाते हैं, और हम जिस भी सेल को सेलेक्ट करते हैं उसे हम सेल बोलते हैं. और सेल क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ओके, दिस इज द रो बार, दिस इज द कॉलम बार, दिस इज द लीफ बार. वी कैन से लीफ बार वो होता है जो आपकी शीट का नाम बताता है, और उसके नीचे ही हमारा स्टेटस बार होता है. और इस स्टेटस बार में ही आपके कुछ व्यू बटन्स होते हैं और कुछ जूम कंट्रोल्स होते हैं. तो अगर आप देखेंगे, दिस इज द ओवरऑल एंटायर विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. Here you can see
Excel components are the following. We have seen in the last figure. ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे पॉइंट्स में बुलेट्स में लिखे हैं. अब हम इनको और ज़्यादा एक्सप्रेस फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे. क्विक एक्सेस टूल बार इज सिचुएटेड एट द टॉप लेफ्ट एरिया ऑफ द स्क्रीन एंड द पर्पस इज टू डिमॉन्स्ट्रेट द एक्सेल कमांड्स दैट आर यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली. जो भी कमांड्स आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो या जो भी आइकन्स आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो वो सारी कमांड्स आपके क्विक एक्सेस टूल बार में होती हैं. दैट्स वाई इसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार ही है. ओके उसके बाद आता है फाइल टैब. फाइल टैब क्या है? फाइल टैब एक तरीके से एक ऐसा टैब है जहाँ पे आपके कुछ इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल्स पे वर्किंग विद द एक्सेल के कुछ आइकन्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि यू कैन ओपन अ एग्जिस्टिंग एक्सेल, यू कैन वर्कशीट, or you can create a new worksheet, or you can save the worksheet, or you can save the workbook. So all these are basic commands you can see in the file tab. उसके बाद आता है title bar and control bars. Title bar of the spreadsheet is located at the uppermost part of the window. Whenever you see, I earlier told you, जो सबसे uppermost part होता है विंडो का वो हमारा title bar होता है. Okay, so this feature present the name of the currently active document. जो भी आप currently शीट पर काम कर रहे हो उसका क्या नाम है वो नाम आपको टाइटल बार पे शो होगा. The control buttons are also there. Icons are also located in the upper right corner of the window, allowing us to modify the minimize, maximize, share and close the sheet. Menu bar, as I have already told you that menu bar is present just below the title bar, and these are the menu bar contains a file, insert, page layout, formulas, data, review. This type of icon you can see in the menu bar, and basically these menus are divided into the subcategories which simplify the distribution of information and analysis of calculation. Okay. Next is the ribbon or toolbar. Each menu bar contains several different elements. On the selection of a menu, a sequence of command or the icons will show on the ribbon. For example, if we select a home tab, so जितने भी home tab से related icons होंगे, like to change the font size, to change the font type, alignments, कंट्रोल फीचर्स, सो जितने भी आपके होम टैब से रिलेटेड होंगे वो सारे आपके रिबन या टूल बार पे शो हो जाएंगे. ऐसे ही इफ़ यू सेलेक्ट द व्यू मेन्यू, सो द आइकन्स और द कमांड्स विच इज रिलेटेड टू द व्यू मेन्यू, ऑल दीज आइकन्स एंड द कमांड्स विल बी शोन ऑन द टूल बार और द रिबन. So ribbon and toolbar is a set of commands organized into three sections, that is tabs, groups and commands. Tabs क्या है? These are the ribbons top part and they include groups of related commands like home, insert, page layout, formula and data. Groups क्या हैं? They organize related commands. The name of the each group is displayed below the ribbon. For example, a set of commands which is related to the fonts. जो आपके fonts से related command होती है वो आपके font वाले ग्रुप में दिखती है. जो आपके alignment से related commands होती हैं वो आपके paragraph ग्रुप में दिखती हैं. जो भी आपके style से related command होती हैं वो आपके style ग्रुप में दिखती हैं. तो ये सारे आपके कुछ ग्रुप्स में डिफाइन कर देते हैं. तो रिबन और टूल बार एक ऐसा रिबन है या टूल बार है जहाँ पे हमने कमांड्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ टैब्स में डिवाइड कर दिया है. उसके बाद आते हैं दे अपीयर विद इन द ईच ग्रुप एज प्रीवियसली स्टेटेड. उनके पास अपनी खुद की कमांड होती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट in the icons which is present in the ribbon on the toolbar, we can directly access them by single click only. We don't go to the menu bar and then click the options. You can directly access by a single click. Then dialog box launcher is there. Dialog box launcher is a very little down arrow that is present in the lower right corner of the command groups on the ribbon. By clicking on the arrow,
We can explore more options related to the concerned group. आपने जब रिबन्स देखे होंगे तो एक छोटा सा आइकन बना हुआ आता है एरो की साइज में, तो वो एरो का साइज ही एक तरीके से डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है जो कि ये बताता है कि आपके इस डायलॉग बॉक्स में इतने सारी चीजें अपीयर हैं। नेम बॉक्स शो द लोकेशन ऑफ द एक्टिव सेल यू आर वर्किंग और द रो और द कॉलम। जो भी जिस भी सेल पे आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो, जिस भी रो या कॉलम पे आप वर्क कर रहे हो, उसका नाम वो नेम बॉक्स में शो कर देती है। फॉर्मूला बार परमिट्स अस टू ऑब्जर्व, insert or edit the information or the formula entered in the active cell। जो भी आपके एक्टिव सेल में डेटा लिखा है, जो भी फॉर्मूला लिखा है या कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो, उसको ऑब्जर्व करना चाहते हो या उसके पीछे का कोई डेटा के पीछे का कोई फॉर्मूला देखना चाहते हो, तो वो आपका फॉर्मूला बार में शो हो जाता है। स्क्रॉल बार्स क्या है? स्क्रॉल बार्स आर द टूल्स दैट अनेबल्स अस टू मूव द डॉक्यूमेंट वर्टिकुलरली एंड हॉरिजॉन्टल व्यूज। जब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट को, एक्सेल शीट को वर्टिकली मूव कराना है या हॉरिजॉन्टली मूव कराना है, तब आप इन स्क्रॉल बार्स को यूज करते हो। एंड वी कैन एक्टिवेट दिस बाय क्लिकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स इंटरनल बार और द एरोज वी हैव ऑन द साइड्स। Next is spreadsheet area. It is the place where we enter our data. It includes all the rows, cells, columns and built-in data in the spreadsheet. We can use shortcuts to perform toolbar activities, formulas or arithmetic operations, add, subtract and multiply, etc. The insertion point is the blinking vertical bar known as the cursor. It specifies the insertion location of the typing. Yesterday I have told you that in Excel sheet the cursor plays a very major role, है ना। तो जैसे ही वो स्प्रेडशीट पे होता है तो कर्सर का एक अपना रोल हो जाता है। वो हर तरीके से देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर यू विल फाइंड ओवर द स्प्रेडशीट, और वो कर्सर ही यहाँ पे वर्क करता है एक स्प्रेडशीट एरिया में और आपको बताता है कि इसका क्या मतलब है या उसका क्या मतलब है। लीफ बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट which says sheet 1 is shown, and this sheet bar describes the spreadsheet which is currently being worked on, and using this we can alternate several sheets or add a new one as per our convenience. So as I told you in the previous class that there is a workbook and worksheet. So what is the difference between these two? A workbook includes multiple number of worksheets, but a worksheet is a sheet where you are currently working, which contains some of the cells, rows and the columns. So leaf bar is what? Leaf bar क्या है? It is present at the bottom of the worksheet and this will show you on which sheet you are currently working. Column bar. Columns are the vertical ordered series of boxes across the full sheet. This column bar is located below the formula bar and the letters of the alphabet are used to label the columns. Begin with the letter A to Z and then after Z it will continue as AA, AB and so on. The number of columns that can be used is limited to 16,384 columns are present in the worksheet. So basically column bar क्या है? Column bar is present just below the formula bar and A, B, C alphabets represent as a columns in the worksheet, and you will find there are the 16,384 columns present in the column bar. Next is the row bar. Row bar is the left part of the sheet where a sequence of numbers is expressed, and we can say the rows indicates as a horizontal way. Begin with the number 1 and further rows will be added as we move on the pointer down, and there are total of 104856 rows available in the rows bar. There are so much rows are available in the row bar, and row bar is at the right side of the worksheet. What are the cells? Cells are those parallel peptides that divide the spreadsheet into many pieces, separating rows and columns. A spreadsheet first cell is represented by the first letter of the alphabet
and the number 1. So basically सेल नेम को कैसे डिनोट करते हैं, सबसे पहले कॉलम का नाम आता है और फिर रोज का नाम आता है. तो ABCD डिनोट्स द कॉलम एंड 1 2 3 डिनोट्स द रोज. तो अगर किसी सेल पे अगर आप हैं तो उसका नाम कैसे लिखोगे, A1 या B2 या B3. So this indicates the cell which is also known as the intersection of the rows and the columns. Status bar. Status bar is present at the bottom of the window that displays critical information. It also indicates whether something is incorrect or whether the document is ready to be printed or delivered. This shows the result of the selected digits such as sum, average, count, maximum, minimum. By right clicking on the status bar, we can configure the status bar. Any command from the specified list can be added or removed. So status bar is the bar where you will find the overall status of the worksheet, and status terms means like sum of the numbers, like average या count और या zoom in zoom out option, जितने भी zoom control buttons होते हैं, that we will find on the status bar only. Now view buttons. View buttons are the set of 3 buttons arranged at the left of the zoom control close to the screen's right button corner. We can see 3 different kinds of sheet views in using this method. There are the 3 views present in the above the status bar, that is normal view, page layout view and page break view. So normal views displays the Excel page in normal way. Page layout view displays the precise layout of Excel page which should be printed, and page break is the view which displays the preview before printing. So there are the 3 views present in the view buttons. Zoom control is present at the lower side of the window. It enables us to zoom in and zoom out the sheet for a specific area of the spreadsheet. It is represented by the magnifying icons with the symbols of maximizing, that is plus, and minimizing, that is minus. So these are the options present in the above the status bar. So we have learned the some of the components of the MS Excel. Now moving towards the how to use Excel. If you are just starting out with Excel, there are few basic commands you have to learn or you become familiar with. So these are the things like, first you have to create a new spreadsheet from scratch. Whenever you want to make a worksheet or you want to work in the Excel, you have to learn these basic terms. So first, to create a worksheet or to create a workbook, we can say. Next is executing basic computations in a spreadsheet, like adding, subtracting, multiplying and dividing in a spreadsheet. हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, लाइक एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, स्प्रेडशीट, जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, हमें उनको भी अप्लाई करना आना चाहिए, एग्जीक्यूट कराना आना चाहिए. नेक्स्ट इज राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग कॉलम, टेक्स्ट एंड टाइटल्स. ये कल हमने पढ़ा था, सम ऑफ द फॉर्मेटिंग इन दी MS एक्सेल. सो उसको कैसे राइट करना है, किसी भी कॉलम के टेक्स्ट को या टाइटल्स को कैसे फॉर्मेट करना है, इससे भी हमें फैमिलियर होने की ज़रूरत है. ये हमारी बेसिक टर्म्स हैं किसी भी एक्सेल में वर्क करने के. नेक्स्ट इज एक्सेल्स ऑटो फिल फीचर्स. देयर आर सम ऑफ द ऑटो फिल फीचर्स लाइक फिलिंग द कलर्स और एडिंग सम ऑफ द pictures, that is also present in the Excels. Adding or deleting single columns, rows in spreadsheet. Below we will get into how to add things like multiple columns and rows. So we can also go familiar with these terms, how to insert and how to delete a rows or the column or the spreadsheet in the MS Excel. And keeping column and row titles visible as you scroll past them in a spreadsheet, so that you can what data you are filling as soon as move further down the document. So रो के टाइटल्स कैसे देने हैं, कॉलम के टाइटल्स कैसे रखने हैं, आपको कैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये सब चीज़ें भी आपको एक्सेल में आनी चाहिए. नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड मोर देन वन न्यू row or column. As you play around with your data, you may find you are constantly needing to add more rows and columns. So sometimes you may even need to add hundreds of rows. So by doing this step one by one,
you in an easy way you can add multiple rows and columns in the spreadsheet by just clicking the right click of the button. You can click the right button of the mouse, and there you will find a drop down list in which there is an option that is insert. So whenever you click on the insert, the new row or the new column will be inserted. Next is filters. When you are looking at very large data sets, you don't usually need to be looking at the every single row at the same time. Sometimes you only want to look at the data that fit into the certain criteria. That's where filters come in. Filters allow you to pare down your data to only look at certain rows at one time. In Excel, a filter can be added to each column in your data, and from there you can then choose which cell you want to view at once. So here is a tip: you can copy and paste the values in the spreadsheet when a filter is on to do additional analysis in another spreadsheets. Before doing some practical work, we can learn it by that there is an option that is filter option, and whenever जब भी आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ शीट ऑफ 60 students in the class, and in the 60 students there are the 2 Sakshis in the class. So I want to know the marks of the Sakshi Tanva. So what I will do is to make a filter, I want to search out the according to the criteria. So I make the criteria like section B students. So मैं उस क्राइटेरिया के लिए फिल्टर का चूज़ कर लूँगी और मैं उसमें से डेटा को कॉपी पेस्ट करके दूसरी शीट में भी उसको पेस्ट करा सकती हूँ. सो फिल्टर एक ऐसा ऑप्शन है जब आपको एक ही टाइम पे बहुत सारे डेटा में से कुछ एक डेटा को एक ही टाइम पे क्राइटेरिया अकॉर्डिंग आपको देखना हो, तो उसके लिए हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है ट्रांसपोज. व्हेन यू हैव लो रोज ऑफ डेटा इन स्प्रेडशीट, you might decide you actually want to transfer the items in one of those rows and into columns, or the vice versa. It would take a lot of time to copy and paste each individual header, but what the transport feature allows you to do, simply move your row data into columns or the other way round. So transpose is a terms where you want to make your rows into the columns and columns into the rows. So start by highlighting the column that you want to transpose into rows, right click on it and then select copy. Next, select the cell on the spreadsheet where you want to first rows column to begin. So right click on the cell and then select paste special, which I have told you in the last class. I have told you there are the 6 options of paste. If you want to paste a content, there are the 6 options. So paste special, a module will appear at the bottom. You will see an option to transpose. Check that box and select OK. Your column will now be transferred to row or vice versa. So this option is also available in the MS Excel, and this will be done by copying and pasting the data. Understand? Excel formulas. Simple calculations. In addition to doing pretty complex calculations, Excel can help you to do simple arithmetic like adding, subtracting, multiplying or dividing of your data. To add, use the plus sign; to subtract, use the minus sign; to multiply, use the asterisk sign; and to divide, use the backslash sign. Okay. You can also use parentheses to ensure certain calculations are done in the first. In the example below, 10 plus 10 into 10. So the second and the third 10 will multiply together before adding the additional 10. However, if we made it 10 plus 10 into 10, the first and second 10 would be added together first. So all game will be done by these parentheses. If you want the average of set of the numbers, you can use the formula equals to average and then cell range. And if you want to sum up a column of numbers, you can use the formula equals to sum cell range. So understand this thing: if you want to apply any formula in the Excel sheet, you have to use the equals to sign.
जैसे आप इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, देयर आर द वेरियस नंबर्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ फॉर्मूलाज. सो विच एवर फॉर्मूला यू वांट टू अप्लाई, यू कैन simply write the formula name or you can direct click on the option whichever you want to apply. कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला अलाउज यू टू चेंज अ सेल्स टाइप. जो भी आपका सेल का कलर है, ये मैंने आपको कल बताया था, जो भी आपका सेल का कलर है, आपका सेल का स्टाइल है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो. First of all, go to the conditional formatting on, then choose conditional formatting from the home menu and select your logic from the drop down. You can also create your own rule if you want something different. A window will pop up that prompts you to provide more information about your formatting rule, and you can select OK after customizing your conditional formatting option. Charts and graphs in the Excel. If you want to make your data in a very visual representation, so you can use charts and graphs in the Excel, and you already know there are some of the types of charts you have. So get your data into the Excel. First you need to input your data into the Excel. This is the easy part. You may have exported the data from elsewhere also, like a piece of marketing software or a survey tool, or maybe you are inputting it manually. Choose a type of data or choose a type of chart or graph to create. In Excel, you have plenty of choices for charts and graphs to create for help figuring out which type of chart graph is best for visualizing your data. So first what you have to do is you have to enter your data in the Excel sheet, and then after, or you can also select or you can also export the Excel sheet from any software tool also, and after that you can choose a type of a chart or graph to create. Then you can also switch the axis like if you it is according to you, it is your own choice that whichever axis you want to make your rows and the columns. अगर आप किसी रोज को y एक्सिस पे रखना चाहते हो चार्ट के या ग्राफ के, या फिर आप किसी कॉलम को x एक्सिस पे रखना चाहते हो, तो ये आप स्विच भी कर सकते हो, इन एक्सिस को एडजस्ट कर सकते हो. उसके बाद एडजस्ट योर लेबल्स एंड लेजेंड्स. टू चेंज द लेआउट ऑफ लेबलिंग इन लेजेंड, click on the bar graph and then click the layout tab. Here you choose what layout you prefer for the chart title, axis title and legends. Next is to change the y-axis measurement options if desired. To change the type of measurement shown on the y-axis, right click on the y-axis percentage and click format axis. Here you can decide if you want to display units located on the axis option tab, if you want to change whether the y-axis shows percentage to 2 decimal places or to 0 decimal places. ये क्या है, बेसिकली अपने y-axis measurements को चेंज करने के लिए है. Next is recorder data if desired. To sort the data so the software choices appear in descending popularity order, click on the column that is most important you to pick the column B and click on the data tab and click filter. If you want to make your data in a reorder way, so you can also do this option in the Excel. If you click on the downward arrows located at B1 and C1, you can choose to sort based on the smallest to largest or largest to smallest depending upon your preferences. Next is the chart. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम पहले चार्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, कि चार्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है अब डेटा एंट्री से पहले, ठीक है. उसके बाद हम चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और ये आपने शायद MS वर्ड में भी पढ़े हैं. बेसिक्स वही चार्ट होते हैं जो होते हैं. फर्स्ट इज चार्ट इज अ टूल यू कैन यूज टू कम्युनिकेट डेटा ग्राफिकली. दिस इज बट ऑब्वियस whenever you want to represent your data graphically in a visual presentation, you use some of the charts. Including a chart in your document can allow reader to see the meaning behind the numbers. It can make showing comparisons and trend easier. So what are the types of charts? There are several types of charts present. Column chart क्या होता है, वर्टिकल बार्स को शो करता है
जहाँ पे वर्टिकली आप अपनी इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हो और जहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जा रहा है। सेकेंड, लाइन चार्ट्स. Line charts are ideal for showing trends. The data points are connected with the lines, making it easy whether the values are increasing or decreasing. जब आपको किसी भी वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है तब आप उसमें लाइन चार्ट्स का यूज़ करते हो. Next is the pie charts. Whenever you want to make it easy to compare the proportions, जब आप किसी भी डेटा या वैल्यूज़ को प्रोपोर्शंस में, छोटे छोटे प्रोपोर्शंस में आप उनको शो करना चाहते हो तब आप बेसिकली पाई चार्ट को यूज़ करते हो. और जब आपको किसी परसेंटेज में अपना डेटा या वैल्यूज़ को शो करना है. नेक्स्ट इज बार चार्ट. बार चार्ट वर्क्स लाइक अ कॉलम चार्ट बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. कॉलम चार्ट्स represent your data in a vertical bar, okay, where bar chart represent your data horizontally. आपका जो भी डेटा है वो हॉरिजॉन्टल बार में शो होगा बार चार्ट्स में, और कॉलम चार्ट में आपका जो डेटा है वो आपका वर्टिकल बार्स में शो होगा. बट द पर्पस इज द सेम ऑफ बोथ द चार्ट्स. Next is area chart. Area charts are similar to line charts except the areas under the lines are filled in. And next is surface charts which allows you to display the data in the 3D manner. जब आप किसी भी डेटा को 3D manner में दिखाना चाहते हो, तीन डायमेंशनल से, तब आप सरफेस एरिया चार्ट को यूज करते हो. Next is the option that is sorting in Excel. Sorting in Excel is nothing but arranging data in a sorted way, Excel according to your requirement. Whenever you want to make your data in a very sorted form, और sorted form क्या हो सकती है, या तो A to Z हो सकती है या Z to A हो सकती है, in ascending order, in a descending order. So some common examples include sorting alphabetically. जब आप किसी भी वैल्यू को, अपने डेटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, या बाय वैल्यूज़ स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट और द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, या फिर डे वीक के हिसाब से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और मंथ वाइज जनवरी फरवरी, तो आप इसमें सॉर्टिंग का चूज़ करते हो. और फिल्टर मेथड सॉर्टिंग इन एक्सेल कैन बी डन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डेटा or the number of text you have, and there are many ways to sort data using the filter method. जब आप filter method को यूज़ करते हो तब आप उससे भी बहुत types of data को sort कर सकते हो. और जो initial हमारा जो basic level पे sorting होता है Excel में, वो alphabetically होता है, या values के according होता है, या फिर text और numbers के according होता है, जो भी उसमें present होते हैं. तो बेसिक सॉर्टिंग क्या है? मल्टीपल कॉलम्स इन सॉर्ट नॉट अवेलेबल, कस्टमाइज्ड लिस्ट सॉर्टिंग कैन नॉट बी डन विद बेसिक सॉर्टिंग. टू ओवरकम दिस यू हैव टू नो द एडवांस सॉर्टिंग ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल इन एक्सेल, और इस एडवांस सॉर्टिंग को भी आप चूज़ कर सकते हो जो कि आपके कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑप्शन में भी अवेलेबल है. डेस्कटॉप, एंड here you will find the data. Okay, so yesterday we have some of the basic we have done some of the basic things in the MS Excel. Practically we are doing. So today also we will do some advanced features like how to find and select, how to filter, and how to. So I have given some random values here: सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, सेक्शन एंड मार्क्स. ये मैंने रेंडमली यहाँ पे डेटा एंट्रीज कराई है. ठीक है, डेटा किसी भी सेक्शन उसका ले सकते हैं हम यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक फॉर एग्जांपल MBA डिटेल्स. ओके, हम यहाँ पे MBA डिटेल्स लिख देते हैं. MBA स्टूडेंट रिकॉर्ड. So what you have to do is, first of all we have to format the overall data. Select all the data, add borders here. Okay, all borders. Understand? Then after this you have to align your data. I will align the data in the center only. Okay, center में मैंने डेटा को अलाइन कर दिया. सेंटर अलाइनमेंट ले लिया और यहाँ से मैंने मिडिल अलाइनमेंट ले लिया, तो मेरा जो डेटा है वो सेंटर में आ गया. उसके बाद मैं वर्क करूँगी अपने हेडिंग्स पे. ये जो मेरे हेडिंग्स और टाइटल्स लिखे हैं यहाँ पर,
तो मैं इनको थोड़ा हाईलाइट करूँगी और इसमें थोड़ा सा 2 ऑप्शन चूज़ करूँगी, दैट इज़ रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। आप देख रहे हो ना, मेरा जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो मेरे सेल साइज से बाहर जा रही है, तो उसके लिए मैं रैप टेक्स्ट का ऑप्शन को चूज़ करूँगी। सो व्हाट आई विल डू दिस, I will select this overall titles, bold them, wrap and text। आप देख रहे हो ये मेरा आ गया। अब मैं इसके आगे थिक बॉर्डर को यूज़ कर दूंगी, उससे मेरा जो फॉर्मेट है वो और अच्छा दिखेगा कि मेरे जो यहाँ पे बॉर्डर्स लिखे हैं वो थिक हैं, ठीक है, वो पता लग जाएगा कि वो हाईलाइट हुए हुए हैं। ये हमारा हो गया, अंडरस्टैंड। सेल का साइज़ मैंने थोड़ा सा कम करना है, सीरियल नंबर, ठीक है, नेम का थोड़ा बढ़ा देना है, एनरोलमेंट नंबर का भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। ओके, अब MBA रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन चूज़ हुआ है, बोल्ड हो गया, एंड दिस विल become okay. So after this what you have to do is, yesterday I have told you some of the options which is related to the paste special, है ना, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन से हमने यूज़ किया। उसके बाद हमने फॉन्ट एरिया, ये जो हमारा पूरा एरिया, इसे हम ग्रुप बोलते हैं, हमारा फॉन्ट एरिया है, ये हमारे हैं अलाइनमेंट्स का एरिया। दिस इज़ फॉर नंबर्स, कि आपको जो अपने नंबर्स हैं वो किस टाइप में रखने हैं। फॉर एग्जांपल जर्नल में अगर मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर दूं तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, या जो भी होगा, जो भी इसके ऊपर होगा, तो भी हम नॉर्मली हम जर्नल पे रखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था कि जो डेटा बार्स हैं वो किस तरीके से आपको फॉर्मेट होते हैं नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्सेल शीट है और आपने यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है, तो इसके साथ आपके कंडीशनल से रिलेटेड इफ़, एल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आपके फॉर्मूलाज फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ पे इसके थ्रू होगी, ठीक है। फॉर्मेट टेबल्स भी कल मैंने आपको बताई थी, क्या फॉर्मेट टेबल्स का ऑप्शंस का भी चूज़ कर सकते हो। सेल स्टाइल्स कल मैंने आपको बताए थे, देखिए एक्सेंट का 0 का 40%, 60%, 20% लाइट कलर है, ये किस तरीके से थर्मट स्टाइल है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इंसर्ट कैसे कराना है, इंसर्ट सेल्स में इंसर्ट कराना है रोज़ एंड कॉलम्स को, ठीक है। उसी के साथ रोज़ एंड कॉलम्स में डिलीट कैसे करा सकते हैं, ठीक है, डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज़, डिलीट शीट कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग कैसे होती है ये भी कल मैंने आपको बताया था। फॉर्मेटिंग रोज़ हाइट, कॉलम की विड्थ का, रो की हाइट को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। अब इसके आगे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपके सम ऑफ द अदर ऑप्शंस हैं। सबसे पहला इसमें ऑटो सम, ये तब है जब आप मार्क्स में ये हमारे जो बेसिक फार्मूलाज हैं, बेसिक फंक्शंस हैं अर्थमेटिक्स के, वो यहाँ पे हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद आता है सॉर्ट फिल्टर का ऑप्शन। जब भी आप किसी भी चीज़ को सॉर्ट, अभी हमने सॉर्टिंग इन एक्सेल पढ़ा था, जब भी आप किसी भी डेटा को यहाँ पे सॉर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट दी योर डेटा एंट्रीज। आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद आपने A to Z कर दिया। तो जैसे ही आप A to Z करोगे अप्लाई, तो वो सारे, इसको आपने सेलेक्ट किया और ये A to Z हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा यू हैव टू एक्सपेंड योर डेटा, ठीक है, या फिर आपने इस पूरे को सेलेक्ट किया, Z2A कर दिया, तो आप देख रहे हो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा नंबर था वो सबसे ऊपर आ गया, सबसे छोटा था वो सबसे नीचे आ गया, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिक्रीज़ हो गई। A to Z करोगे तो आप A to Z के अकॉर्डिंग आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी। इसके बाद एक ऑप्शन आता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट को आप जैसे ही क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और जैसे ही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा ये आपसे पूछेगा कि आपको सॉर्ट किस तरीके से करना है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, या आपको एनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग करना है, स्टूडेंट नेम या सेक्शन या मार्क्स।
आपने यहाँ टाइटल्स डाल रखे हैं इसलिए यहाँ टाइटल्स दे रखे हैं। अगर आपके टाइटल्स नहीं होते तो जो भी आपके कॉलम का अल्फ़ाबेट है, ऊपर कॉलम नेम है, वो उस कॉलम नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता। ठीक है, उसी के साथ ये पूछेगा आपको सॉर्ट किस तरीके से करना है और किस पे करना है। वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है, या सेल के कलर को सॉर्ट करना है, या फॉन्ट के कलर को सॉर्ट करना है, या सेल आइकन को सॉर्ट करना है। उसी के साथ किस ऑर्डर में करना है। ऑर्डर भी आपसे पूछेगा कि आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, कस्टम करनी है लिस्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सीरियल नंबर से तो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम एनरोलमेंट नंबर के थ्रू लेते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर के साथ ही आपने वैल्यूज़ को चूज़ किया और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस लिस्ट में बीच में 34 भी आ रहा है, बीच में 9 भी आ रहा है, बीच में 14 भी आ रहा है। ठीक है, अब मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करा है, वैल्यूज़ करा है, एनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग करा है। तो मैं ओके पे क्लिक करूँगी और मेरी जितनी भी लिस्ट है सॉर्टेड लिस्ट वो ऐसे आ जाएगी। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। अब मैंने पूरी लिस्ट को सेलेक्ट किया हुआ था तो मेरे सीरियल नंबर्स का ऑर्डर बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि एनरोलमेंट नंबर के साथ जितनी भी डिटेल्स लिखी हैं वो भी उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगी। और अगर मैं सिंपली एनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करती तो जो एनरोलमेंट नंबर है सिर्फ वही मेरे सॉर्ट होते, ना कि उसके साथ जो लिखी और वैल्यू सॉर्ट होती। ठीक है, अब आपने पूरी शीट को सेलेक्ट किया है तो पूरी शीट पे उससे रिलेटेड जो भी डेटा लिखा हुआ होगा वो पूरा आपका सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेटेड। मतलब 1009 में किसका नाम लिखा था, मनप्रीत का नाम लिखा था, तो मनप्रीत सेक्शन सी 88 मार्क्स, वो भी वैल्यूज़ भी इसी के साथ सॉर्ट हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ एनरोलमेंट नंबर को सेलेक्ट करते तो सिर्फ एनरोलमेंट नंबर ही सॉर्ट होते, उसके साथ जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो सॉर्ट नहीं होती। ट्राई करके देखते हैं प्रैक्टिकली। चलिए दोबारा से हम सिर्फ एनरोलमेंट नंबर को उठा लेते हैं और इसको सॉर्ट करते हैं A to Z। ये हमसे पॉपअप मैसेज में कह रहा है कि अगर आपको ये डेटा सेलेक्ट करना है या सॉर्ट करना है तो इसके साथ की जो चीज़ें हैं वो भी सॉर्ट होंगी। तो इसलिए ये हमें एक्सपेंड करने के लिए रह रहा है कि अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड करो। वाई? बिकॉज ऑल द डेटा इज रिलेटेड टू द एनरोलमेंट नंबर। ओके, सो ये हमने सॉर्ट किया। अब हमने देखा यहाँ सीरियल नंबर्स हो गए, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से अपना डेटा सेलेक्ट करूँगी। मैं अपने सीरियल नंबर्स को बदलना नहीं चाहती हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कस्टम सॉर्ट किया, सॉर्ट बाय 1005। उन्हें दिख गया कि मेरा जो है 1005 एनरोलमेंट नंबर है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, वैल्यूज़ पे किया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मेरा सीरियल नंबर यहाँ चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया था। मेरी यहाँ की डिटेल्स जो सारा यहाँ का डेटा है वो सॉर्ट हो गया। आपने देखा सबसे पहले 55 लिखा हुआ आया है, पर वाई 55 क्यों? क्योंकि हमने 55 से सेलेक्ट किया था, तो उससे नीचे की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सॉर्ट हो जाएंगी। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करती, फॉर एग्जाम्पल एनरोलमेंट नंबर, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। देखिए 9 सबसे पहले ऊपर आया है। ठीक है, तो ये ऐसे सॉर्ट होता है। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ सॉर्ट। मैं चाहती हूँ मैं नाम के अकॉर्डिंग जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल नेम्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाए, तो मैं इसको सॉर्ट करूँगी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में उसने ऑर्डर बदल दिया, A to Z रखा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का जो नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली लिखा है, और अभी हम एनरोलमेंट नंबर देख रहे थे तो वो नंबर्स की फॉर्म में थे। तो जैसे ही स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करा वहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, A to Z या Z to A। Z to A चूज़ करती हूँ मैं ऑप्शन। ओके, तो Z to A से जो डिक्रीजिंग सबसे पहले S आएगा, फिर R आएगा, फिर M L J K I F, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो भी सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कस्टम सॉर्टिंग हो गई। अब इस कस्टम सॉर्टिंग में फॉर एग्जांपल हम कलर्स के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया ब्लू कलर, इसको मैं दे रही हूँ ब्लैक,
इसको ग्रीन, कलर्स के अकॉर्डिंग भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको। सेलेक्ट किया, कस्टम सॉर्ट अकॉर्डिंग टू एनरोलमेंट नंबर, सेल कलर। तो देख लिया सबसे पहले आपको कौन सा सेल का कलर रखना है। मैं सबसे पहले क्या चाहती हूँ, उसने एनरोलमेंट नंबर करा, किसके हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हो, किस पे सॉर्टिंग करना चाहते हो और किस ऑर्डर में। जैसे ही आपने सेल कलर को सेलेक्ट किया तो उसके ऑर्डर में आ गया कि आप टॉप पे कौन से सेल का कलर चाहते हो। उसने ऑटोमेटिकली उन कलर्स को यहाँ पे सेट कर लिया कि हमारे पास इतने ही कलर्स हैं, ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रे है, ग्रीन है, लाइट ग्रे है, स्काई ब्लू है और येलो है। यही कलर्स का यहाँ यूज़ हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यही कलर्स यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ मैं ऑरेंज को टॉप पे रखूँ। टॉप के बाद मैं बॉटम में भी रख सकती हूँ, टॉप में रख सकती हूँ। पहले टॉप करके देखते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने देखा ऑरेंज से रिलेटेड जितने भी नाम थे वो सबसे ऊपर आ गए, उसके बाद सारे एज इट इज़ रहे। ठीक है, चेंज हो गए वो उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इस पर सेलेक्ट करके मैं एग्जाम्पल कस्टम सॉर्ट करना चाहती हूँ। मैं टॉप पे रखना चाहती हूँ ग्रीन को और मैं बॉटम में रखना चाहती हूँ ग्रीन। ठीक है, तो देखिए ग्रीन बॉटम में आ गया, उसके बीच के सारे एज इट इज़ रहे। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग है सेल के कलर के हिसाब से। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, इसमें एक चीज़ और हो सकती है, आप सॉर्टिंग फॉन्ट के कलर के हिसाब से भी कर सकते हो। अभी तो हमारे सारे फॉन्ट का कलर ब्लैक है, अभी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने ले लिया रेड, इसमें ले लिया मैंने ऑरेंज, इसमें ले लिया मैंने ब्लू, इसमें ग्रीन, इसमें पर्पल। ये मैं फॉन्ट के कलर चेंज कर रही हूँ। अभी मैं इसके कलर्स हटा देती हूँ, यहाँ पे सब में नो कलर कर देती हूँ, तो थोड़ा आपको और अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा कि कौन कौन से कलर्स हमने चूज़ किए हुए हैं। ठीक है, वॉयलेट, ब्लू। ठीक है, तो ये कलर हमने रैंडमली फॉन्ट के कलर को बदल दिया। अब मैं फॉन्ट के कलर के हिसाब से सॉर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ सॉर्ट फिल्टर पे गई, कस्टम सॉर्ट करा। कस्टम सॉर्ट करके मुझे किसके हिसाब से बदलना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम लेना है। ठीक है, और मुझे सेल के कलर को चेंज करना है, सॉरी फॉन्ट कलर को चेंज करना है। अब यहाँ पे मुझसे पूछेगा कौन सा सबसे पहले आपको रखना है या ऑटोमेटिक करना है। या तो आप कलर चूज़ कर सकते हो या ऑटोमेटिक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। हम सबसे पहले ऑटोमेटिक ऑप्शन को चूज़ करते हैं, ऑन टॉप रखते हैं। तो आपने देखा जितने भी ब्लैक से रिलेटेड थे वो सबसे पहले ऊपर आ गए, फिर रेड ये ऑरेंज आ गया, फिर ये वाला कलर आ गया, फिर रेड आ गया, फिर पिंक आ गया। आपने देखा ये इस तरीके से सारे कलर्स को एक साथ कर दिया। जो भी इसके अकॉर्डिंग होगा, इस थीम के अकॉर्डिंग होगा। ब्लैक सबसे पहले है, फिर येलो है, फिर ये हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट होके आ गई। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाके कस्टम सॉर्ट करके आप फॉन्ट कलर में जाके ब्लू को पहले रख सकते हो ऑन टॉप। ठीक है, इट्स टेकिंग अ रैंडम एग्जाम्पल। तो ब्लू से जितने भी रिलेटेड डेटा है वो सारा आपका ऊपर आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सॉर्टिंग 3 तरीके से हुई। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा। जो भी आपने डेटा एंट्रीज कराई है उस पूरी शीट को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, होम मेन्यू में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। आप सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन को चूज़ करोगे तो आपके वहाँ पे 3 वेज अवेलेबल होंगी। पहला वे है डायरेक्टली A to Z का ऑप्शन,
देन नेक्स्ट Z2A का ऑप्शन एंड द लास्ट कस्टम। अकॉर्डिंग टू मी कस्टम वाला ऑप्शन मैं चूज़ करती हूँ क्योंकि उससे मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो जाती है। तो मैं कस्टम सॉर्ट को अप्लाई करती हूँ, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करती हूँ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इट विल आस्क बाय विच यू हैव वांट टू सॉर्ट। ठीक है, किसको किसके थ्रू सॉर्ट करना चाहते हो, एनरोलमेंट नंबर को सॉर्ट करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, सॉर्ट ऑन वैल्यूज़ पे करना चाहते हो या सेल के कलर पे करना चाहते हो या फॉन्ट के कलर पे करना चाहते हो, एंड आफ्टर दैट किस ऑर्डर में करना चाहते हो, है ना। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए आप ये सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को करके देखिए। उसके बाद एक ऑप्शन आता है दैट इज़ फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर है। अब फिल्टर हमें कहाँ लगाने हैं, हेडिंग्स में लगाने हैं। तो हमने अपने हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया, फिल्टर वाले ऑप्शन में गए, फिल्टर चूज़ किया। जैसे ही आप फिल्टर ऑप्शन पे चूज़ करोगे तो यहाँ पे एक एरो बनकर आ जाएगा एक। ठीक है, इस एरो को आप चूज़ कर सकते हो। ये जो एरो है आप इस एरो से पता लग जाएगा कि आपको फिल्टर किस अकॉर्डिंग करना है। तो फिल्टर का मतलब क्या है, whenever you want to find out the specific things from the numerous numbers of things, जब आपको किसी चीज़ को छान के या किसी चीज़ को छांट कर सेलेक्ट करना हो तब आप फिल्टर का चूज़ करते हो। तो ऐसे ही ये तो डेटा 20 नंबर्स का है। ठीक है, आने वाले टाइम पे डेटा 400 का होगा, 500 का होगा। उस 500 के डेटा में आप एक एक रोज़ और कॉलम्स को तो चेक नहीं कर सकते या उसमें से कुछ चीज़ ढूंढ नहीं सकते। तो आप तब क्या करते हो, फिल्टर ऑप्शन को चूज़ करते हो और फिल्टर ऑप्शन आपको मिलेगा होम मेन्यू में एट द राइट साइड वेयर द सॉर्टिंग इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो होम मेन्यू में आपने फिल्टर ऑप्शन को चूज़ करा, जैसे ही आपने क्लिक करा तो वहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए आ गए। अब फिल्टर जैसे ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इसमें भी कुछ सॉर्टिंग अवेलेबल है और साथ ही साथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा कि आपको किन चीज़ों को दिखाना है। ठीक है, हम इस पे वर्क करते हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, मैं चाहती हूँ सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बारे में मुझे पता लग जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास सारी डिटेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए पे क्लिक कर लूँगी। बाकी सारे चेक बॉक्सेस को मैंने ब्लैंक कर दिया और सिर्फ सेक्शन ए को मैंने चूज़ करा है। जैसे मैं सेक्शन ए पे क्लिक करूँगी तो ओके बटन आ जाएगा और जितने भी सेक्शन ए से रिलेटेड डेटा है वो मेरा सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा डेटा मेरा हाइड हो जाएगा। तो सेक्शन ए से रिलेटेड डेटा हुआ। अब मैं इस सेक्शन ए के रिलेटेड डेटा को भी कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ किसी और शीट पर। मैं क्या करूँगी, इस पूरे को सेलेक्ट करूँगी, Ctrl+C। ठीक है, और यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया तो आपने देखा डेटा यहाँ अलग से पेस्ट हो गया। तो ये तो तब हो जब सेक्शन वाइज आपको डेटा निकालना हो, ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते हो आप, 2 सेक्शंस का एक साथ निकाल सकते हो। तो ए और बी से जितने भी ए और बी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ आपके शो हो जाएंगे। तो फिल्टर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिल्टर में आपका ऑप्शन ये है, क्लियर कर दिया तो फिल्टर हट गया यहाँ से। ठीक है, फिल्टर में आपका एक ऑप्शन ये है कि आप फिल्टरिंग के साथ साथ सॉर्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, सॉर्ट A to Z है ना, तो फिल्टर ऑप्शन के साथ सॉर्ट A to Z, तो A to B सारे सॉर्ट हो गए। फिल्टर भी लगा हुआ है और साथ में A to B के अकॉर्डिंग भी सॉर्टिंग हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप फिल्टर के साथ सॉर्टिंग को जब चूज करते हो तो आपको पूरी शीट को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसी के साथ आप सॉर्टिंग को Z to A भी कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीज टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट बाय कलर कर सकते हो। ब्लू कलर को पहले ले आओ। ठीक है, यहाँ क्या एडवांटेज है, यहाँ पे ये एडवांटेज है आपके पास कि सिर्फ सॉर्टिंग में आप पूरी शीट को सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ आप क्या कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू फिल्टरेशन, फिल्टर के साथ आप उस चीज़ को सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये चूज़ किया फिल्टर बाय कलर, पर्पल, सिर्फ पर्पल से रिलेटेड आ गया, सॉर्टिंग भी हो रखी है आपकी। साथ ही साथ टेक्स्ट फिल कर सकते हो आप, कस्टम फिल्टर डज नॉट कंटेन बिगिंस विद। ठीक है, तो ये फिल्टर आप रिमूव कर दो तो आपका सब रिमूव हो जाएगा। आप इसको रिमूव कर दो,
इसको रिमूव कर दीजिए तो आपका ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्शन ऑफ फिल्टरिंग। अब इसको आप क्लियर कर सकते हो तो आपके फिल्टर्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो आपने फिल्टर उसके अकॉर्डिंग कर रखा था सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और जो आपने फ़िल्टर लगा रखा था वो यहाँ से ही फ़िल्टर हट जाएंगे। फ़िल्टर का साइन देख रहे हो आप, आपने आई थिंक देख रखा होगा कि कोई एक क्यूब सा वो बना हुआ है, एक पाइपिंग सा, जिसमें आप फ़िल्टर करते हो छानने की चीज़ें, तो फ़िल्टर होके आ जाती हैं। ठीक है, सो ये फ़िल्टर का ऑप्शन है। अब बात करते हैं यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट का, जो कि हमारा अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वेन एवर यू फाइंड अ थिंग और अ टर्म फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ डेटा, सो यू हैव टू चूज़ दिस ऑप्शन फाइंड एंड सेलेक्ट। ये बहुत अच्छा काम करता है, आपको पूरी शीट को देखना नहीं पड़ेगा, एक एक करके जाना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। आप डायरेक्टली फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन को चूज़ करोगे। फाइंड ऑप्शन को, जैसे आप फाइंड ऑप्शन को चूज़ करोगे, आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड इट विल आस्क फाइंड व्हाट, आपको क्या ढूंढना है। अभी तो 20 लोगों का डेटा है, ठीक है, आने वाले टाइम पे 20 या 1000 लोगों का डेटा होगा, तो आपको ढूंढना क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे ढूंढना है साक्ष्य, मुझे लक्ष्य को ढूंढना है, मुझे लक्ष्य से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लक्ष्य। ठीक है, जैसे मैं लक्ष्य पे क्लिक करूंगी, फाइंड ऑल और फाइंड नेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस है। फाइंड नेक्स्ट क्या है, जो कि सबसे पहले लक्ष्य दिख जाएगा वो फाइंड आउट कर लेगा, या उसके बाद वाला। या फिर फाइंड ऑल का है, जितने भी लक्ष्य नाम के लोग होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो फाइंड ऑल ऑप्शन चूज करा मैंने, एक सेल मिली और इसमें लिखा हुआ आ गया स्टेटस कि एक सेल फाइंड आउट है, क्योंकि एक ही सेल में लक्ष्य था और अपने आप उस सेल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लक्ष्य यहाँ पे लिखा, यहाँ पे पता लग गया कि सेल है और अपने आप ये सेल सेलेक्ट हो गई कि लक्ष्य यहाँ पर है, इस जगह पर है। अभी तो ये क्या कहते हैं, छोटा डेटा बना हुआ है, इसलिए आपको एकदम से फाइंड आउट हो रहा है। जब 500, 600 या 1000 से ऊपर का डेटा होता है तब पूरी शीट को देखना डिफिकल्ट बढ़ जाता है, तब एकदम से वहीं हाईलाइट हो जाता है कि लक्ष्य कहाँ पर है। ठीक है, अब फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि कोई और लक्ष्य है ही नहीं, तो इसलिए वो इसी लक्ष्य को दिखेगा। और क्लोज, ठीक है, तो लक्ष्य मैंने ढूंढ लिया। अब इसी के साथ एक ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, रिप्लेस। आज हम यही करेंगे रिप्लेस तक। ठीक है, अब इस लक्ष्य को, या यहाँ पे कहीं और भी मैं लिखना, कुछ और भी मैं लिख सकती हूँ जो भी हमारे डेटा में प्रेजेंट है। तो इस लक्ष्य की जगह मैं किसे रिप्लेस करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ करण। ठीक है, लक्ष्य की जगह मैं करण का नाम लिखना चाहती हूँ। तो जितने भी यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रिप्लेस ऑल या रिप्लेस फाइंड ऑल या फाइंड नेक्स्ट। रिप्लेस ऑल का अगर ऑप्शन चूज करती हूँ तो जितने भी लक्ष्य हैं सब जगह पे वहाँ पे करण आ जाएगा, है ना। और रिप्लेस का ऑप्शन चूज करती हूँ तो जो पहला लक्ष्य मिलेगा वहाँ पर करण आ जाएगा। सबसे पहले मैं रिप्लेस का ऑप्शन चूज करती हूँ तो आपने देखा अपने आप करण बन गया। ठीक है, मैं एक दो जगह और लिख के देखती हूँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आदित्य, ठीक है, आदित्य नाम के 2 लोग हैं कि 4 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग मैंने आदित्य नाम के बना दिए। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ आदित्य को करण नाम से। आदित्य को मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहती हूँ फिजा नाम से। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल कर दूंगी। तो देखो जितने भी रिप्लेस हुए यहाँ पे पॉपअप मैसेज में अपीयर हो गया कि वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, और वो सारे डन हो चुके हैं। तो 3 नाम से आदित्य लिखे थे, वो पूरी शीट में उन 3 नाम की जगह फिजा, फिजा एंड ऊपर फिजा, फिजा आदित्य के नाम की जगह रिप्लेस हो चुका है। सो टुडे, so this is the option of find and replace. So what we have learned today, we have learned how to data enter and how to do the sorting, how to find and replace the option, and last there are some of the features like filter features, sorting features, find and replace option here also, and some of the making how to make the data entries
एंड साथ ही साथ वी हैव लर्न दी होम मेन्यू टूल्स, जो भी हमारे होम मेन्यू में टूल्स हैं हमने उसको बेसिक लेवल पे लर्न किया है और आज उन चीज़ों को देखा है. So by today we have learned some of the basic things, how to use the Excel, how to create the workbook and worksheets, what are the components, how to sort the data, how to filter the data, and how to find and replace the data. So today we have learned these some of the basic features of MS Excel. In the next class we will learn some of the basic functions or the formulas in the data sheet. जो भी हमारा डेटा है उसमें हम formulas और functions को पढ़ेंगे. Take care all of you. Thank you.